Good morning, friends. Welcome back to the lecture of the surveying subject. In the previous lecture, we have discussed about the introduction portion. We have seen the syllabus of the surveying subject. Then unit number 1, definition of surveying and leveling. And at last, we have seen the objective of the surveying. Yes, this is the definition of the surveying. I am just reading once so you can recall it. Surveying is the art and science of the determining the relative positions of various points on the surface of the earth by measuring the horizontal distance, angles, and taking the details of these points, and by preparing a map or plan to any suitable scale. So surveying will happen only in the horizontal plane. Okay, in case of leveling is a branch of the surveying which deals with the measurement of the relative heights. That means it will measure the distance in the vertical plane of the different points on, above or below the surface of the earth. So this is the leveling definition. We have seen the objective of the surveying. The objective of the surveying is to prepare map or plan to some suitable scale which can show the different boundaries of a particular district, state, countries, etc. And it also helps us to differentiate different engineering features such as building, road, railways, dams, canal, etc. So these are the objective of the surveying. Okay, we have learned in the previous lecture. Now in this lecture, we are going to discuss the use of the surveying. Now, many of you are aware about this all kind of maps, but we will discuss each and every map in detail so that you can get the better idea. तो इस लेक्चर में हम सर्वेइंग के यूज़ के बारे में बताएंगे. ठीक है, हमने सर्वेइंग की डेफिनेशन समझी, हमने लेवलिंग की डेफिनेशन समझी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव देखा, और अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ सर्वेइंग. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, there is a map called topographical map. Okay, we will discuss later in the lecture. Just you need to remember the names of all these maps. So for that you can remember this kind of figure and you can easily list out the different kind of the map or different kind of use of the surveying. So first and foremost thing, topographical map. This is the cadastral map. Okay, engineering map, contour map, military map, and transferring details. So these are the use of the surveying. So before going for the understanding, you need to remember this. Okay, yes, let us see each and every map by its photo and its description, so you will get the better idea. Okay, topographical map. Here what is written? Surveying is used to prepare a topographical map which shows hills, valleys, river, forest, village, towns, etc. So topographical map जो है वो आपको पर्वत, नदियाँ, वादियाँ, फॉरेस्ट, आपका गांव, आपका शहर वो दिखाएगा. तो बेसिकली हम गूगल मैप जो यूज़ करते हैं वो आपका टोपोग्राफिकल मैप है, क्योंकि आप उसमें आप बेसिक ओवरव्यू देख सकते हैं. ठीक है, दूसरा जो है वो कैडेस्ट्रल मैप है. तो इस इमेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ बाउंड्रीज दिखाने के लिए होगा. देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग ये हाउसिंग कॉलोनी लग रही है. तो हाउसिंग कॉलोनी की जो अलग अलग प्लॉट एरिया है 1 2 3 4 लाइक वाइज, तो वो प्लॉट की साइज दिखा रहा है. ठीक है, तो प्लॉट की साइज हमें कैसे पता चलेगा? प्लॉट के बाउंड्री से. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अलग अलग तरह की बाउंड्रीज बनी हुई हैं. ठीक है, इस तरफ भी आप देख सकते हैं. तो बेसिकली सर्वेइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रल मैप विच शो द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड. अगर आप सर्वेइंग कर रहे हैं तो सर्वेइंग फील्ड के जो बाउंड्रीज है वो कैसे डिसाइड करेंगे? आप कैडेस्ट्रल मैप से डिसाइड करेंगे. डिफरेंट प्लॉट्स for the residential building, industrial building, etc. Okay, then houses and other properties. Okay, तो वो जो है वो हम बाउंड्रीज कैडेस्ट्रल मैप से जान सकते हैं. इसके अलावा इंडिया के जो
स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, उसकी भी बाउंड्री हम कैडेस्ट्रल मैप से जान सकते हैं। तो सर्वेइंग का यूज़ कहाँ पे होता है? अलग अलग मैप बनाने में, उसमें पर्टिकुलरली कैडेस्ट्रल मैप जो है वो आपको बाउंड्री दिखाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैप बेसिकली क्या है कि वो आपको मोर डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप में क्या था कि आपको वो ओवरव्यू देगा, जैसे कि आपको टाउन जो है, विलेज कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, वो आपको आइडिया देगा, हिल कहाँ पे है वो आपको आइडिया देगा। लेकिन इंजीनियरिंग मैप में क्या है कि आप अगर वो टाउन का एरिया मेजर करना चाहे, आप वो टाउन में से पास हो रहा किसी हाईवे की विड्थ मेजर करना चाहे, तो वो आप इंजीनियरिंग मैप में कर सकते हैं। गूगल मैप में आप क्या नहीं कर सकते, वो आपको ओवरव्यू देगा, ठीक है। तो ओवरव्यू देने से आपको जो, मान लीजिए आप गूगल मैप में यानी कि टोपोग्राफिकल मैप में हाईवे के पास में जो एक इलेक्ट्रिक पोल है उसका डायामीटर मेजर करना चाहते हैं, तो वो डायामीटर आप टोपोग्राफिकल मैप में नहीं मेजर कर सकते हैं, वो डायामीटर आप इंजीनियरिंग मैप में ज़रूर मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, यहाँ पे कुछ हाईवेज जा रहा है, हाईवेज पास हो रहा है, उसका कुछ सर्विस रोड है, विलेज रोड है, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, यहाँ पे और कुछ है, ठीक है, जो लोकल अथॉरिटी ने परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैप में कौन सी इन्फॉर्मेशन बनेगी कि आप डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको डायामीटर किसी चीज़ का चाहिए, कितना दूर है, एग्जैक्ट लोकेशन, ओके। तो आपको मैं कहूँ इस इंडस्ट्रियल प्लॉट के सेंटर से इस हाईवे का सेंटर आप हम जोड़ दे तो कितना डिस्टेंस होगा, वो हम इंजीनियरिंग मैप में बता सकते हैं, ठीक है। तो सर्वेइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर एन इंजीनियरिंग मैप विच शोज द पोजिशन ऑफ द इंजीनियरिंग वर्क्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिज, रिजर्वायर, कैनल्स एट्सेट्रा। अगर आप ब्रिज की लेंथ यानी कि स्पान मेजर करना चाहे तो वो टोपोग्राफिकल मैप में पॉसिबल नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग मैप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंजीनियरिंग मैप। ये पोर्शन जो है वो आपको जय सर डिटेल में बताएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि कंटूर मैप क्या होता है। कि कंटूर मैप जो है वो आपकी 3D इमेज है वो 2D में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी हिल है, हिल को हम रेगुलर इंटरवल पे हम कट करते जाए इस तरह से, ठीक है। ये हमने सेक्शन लगाया, सेक्शन AA, फिर सेक्शन BB रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, फिर सेक्शन CC DD, ऐसे होते होते हम टॉप पर आ जाए। अगर फिर हम इसको कंप्रेस कर दें तो वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो AA ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं आपको लेज़र से दिखा रहा हूँ। फिर अगर हम और ऊपर जाए ये वाला सेक्शन, तो हमें कहाँ से 1 2 3 4, तो फोर्थ वाला जो सेक्शन है तो हम भी यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 और 4। तो ये जो है वो आपका फोर्थ सेक्शन है, 4 सेक्शन है लाइक वाइज, ओके। तो सिमिलरली कंटूर मैप बनाने के लिए भी सर्वेइंग का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप टू नो द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, to find out the best suitable site for the road, bridge, railway, reservoir, canal etc. तो कंटूर मैप का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है कि कंटूर मैप जो है अगर आपको कैनाल बनानी है, ठीक है, तो जो सोर्स है, वाटर का सोर्स है, वहाँ से आप पानी लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी फार्मर के फील्ड में, तो वो जो सिस्टम है, वो जो पाथ है कैनाल का, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, कंटूर मैप से, ओके, ताकि उसका पानी का जो पूरा फ्लो है उनको मिल सके। तो ये हम कंटूर मैप की मदद से कर सकते हैं। रेलवेज का लोकेशन वो भी हम कंटूर मैप से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो है, इंडियन रेलवे है, वो कहीं पे भी पटरियाँ बिछा देगा, ऐसा नहीं होता। आपको कंटूर मैप के हिसाब से रेल की पटरियाँ बिछानी होती है। सिमिलरली ब्रिज बनाना है तो भी आपको कंटूर मैप का यूटिलाइजेशन करना होगा ताकि आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। अब जो है जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, तो सर्वेइंग जो है इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल मैप, ओके। तो जियोलॉजिकल मैप क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको इग्नियस रॉक कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो आपने जियोलॉजिकल उसको सिलेक्ट कर लिया कि जो ग्रीन कलर का है वो वहाँ पे आपको इग्नियस रॉक मिलेगा। तो यहाँ पे गुजरात में आप देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपको इग्नियस रॉक मिलेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो शेडेड पोर्शन है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फिर कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे बॉटम में, ठीक है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो वो पिंक कलर का है, तो पिंक कलर जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगा। तो ये हो गई जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इंडिकेट करनी है तो आप सर्वे की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो कौन सा क्रॉप कहाँ पे उगाया गया है, जैसे कि व्हीट हो गया तो व्हीट को आप येलो कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर शुगर केन हो गया, ठीक है। फिर मस्टर्ड हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप जियोलॉजिकली इंडिकेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाइज, ओके। तो सर्वेइंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल मैप, archaeological map is nothing but that will show you an ancient object identified in a particular area, okay। जैसे कि गुजरात में लोथल में कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली थी तो वो हम आर्कियोलॉजिकल मैप से बता सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल मैप में हम ये भी बता सकते हैं कि हड़प्पन संस्कृति जो है उसमें से कौन सी प्राचीन चीज़ें मिली थी वो हम इस मैप में इंडिकेट कर सकते हैं सर्वेइंग की मदद से। फिर होता है मिलिट्री मैप। हर एक जो कंट्री है वो अपना मिलिट्री मैप बना के रखता है स्ट्रेटेजिक अटैक के लिए। आप वो मिलिट्री मैप जो है वो आप सर्वेइंग की मदद से बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो मिलिट्री मैप है वो किसी भी देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैप होता है, ठीक है। वो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगा। वो मिलिट्री मैप जो है वो आपको मिलिट्री ऑफिसर जो उस फील्ड से रिलेटेड है उनको ही मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप मांगने जाओगे मिलिट्री मैप तो आपको वो नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ओके। तो ये सर्वेइंग का जो है कितना वास्ट यूज़ है वो आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल टुगेदर। तो सर्वेइंग में बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, वो आपको याद रखने हैं और उसमें कौन सी डिटेल्स आती है वो भी आपको याद रखनी है ताकि हम वो अच्छे से समझ सकें। तो सर्वेइंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप, टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रियल मैप, टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैप, टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप, टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप, जियोलॉजिकल मैप एंड आर्कियोलॉजिकल मैप, एंड फाइनली for setting out of the work and transferring the details on the map to the ground। तो आप जो ये सब मैप बनाते हैं उसका हमें इम्प्लीमेंट भी करना होता है, तो वो भी आप सर्वेइंग की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।